Morning students, today I am going to discuss about corrosion, types of corrosion, factor affecting the corrosion, theory of corrosion and prevention of corrosion. corrosion टर्म तो आपके 10th स्टैंडर्ड में ही आ गई थी, वैसे छोटी क्लासेस में भी है। और वह डेफिनेशन क्या है? द कांस्टेंट ईटिंग अप ऑफ ए मेटल फ्रॉम देयर सर्फेसिस in the presence of oxygen, moisture and gases like CO2, SO2, oxides of nitrogen, phosphorus, etc. is called corrosion. Corrosion is surface, it always takes place at the surface of a metal. Then layer after another, there is a gradual decay of the metal. मेटल ना होकर के मेटल साल्ट बन जाता है और इसी वजह से जो मैलिबिलिटी है वो नहीं रहती। थोड़ा ही टर्न कर में वो पाउडर गिरना शुरू हो जाता है। मैं नॉट मैलिब ब्रिटल जो कंपाउंड बन चुका है ब्रिटल होगा। 10th में एक्टिविटी थी अगर ड्राई ऑक्सीजन है तब भी कोरोजन नहीं होगा और डीएरेटेड वाटर है तब भी नहीं होगा। वो ऑक्सीजन और वाटर तो बिल्कुल ही एसेंशियल कंडीशंस हैं फॉर कोरोजन। आयरन के केस में जब कोरोजन हो चुका होगा तो क्या फार्मूला होगा? Fe2O3x water, and in that case you will get brown colored or yellow colored compound at the surface of the metal. In case of copper, you will get a copper hydroxide carbonate, a green colored compound is formed on the surface of metal, while in case of silver, Ag2S, a black colored compound is formed. In this way, the different type of salts are formed on the surface of a metal, and hence we call them that is corrosion. There are two types of corrosion: atmospheric corrosion and immersed corrosion. A metal gets corroded when kept in open. फर्श पे है, बरांडा पे है, गेट है, ग्रिल है, रूफ टॉप है। ऐसे अगर आपका चेयर है आपका घर में और उसका मेटालिक पार्ट जो कोरोडेड होता है, देन इट इज एटमॉस्फेरिक कोरोजन। रेलवे लाइन गटर्स जो से हैं वो इसके अंदर ब्रिजेस हैं, मेटालिक ब्रिज वो इसकी कैटेगरी में है। And it must be present in some liquid, like it may be either metal get corroded when present in nala, river, pond, in sea. And sea water contain dissolved oxygen and minerals, since everything is available, and in that case also corrosion takes place. What are the factors affecting the corrosion? First is nature of metal. Higher the reactivity of a metal, lower the reduction of potential of metal, higher will the rate of corrosion. Copper, in comparison to copper, iron undergoes corrosion at a faster rate. Presence of oxygen and moisture. In the absence of oxygen, there is no corrosion. In the absence of water, moisture, there is no corrosion. Impurity in the metal, particularly if there are different composition is there, in that case they have different reduction potentials. And the impurities have high reduction potential, that the corrosion of iron takes place much faster, because in that case iron acts as anode due to high reactivity, low reduction potential. Strain in the metal, where there is a bend, where there is a heap, where there is a scratch, वहाँ पे कोरोजन बड़ा फास्ट होगा इन कंपेरिजन। सरफेस ऑफ अ मेटल ग्रेटर रफ सरफेस ऑफ द मेटल, जितना रफ सरफेस होगा उतने सेल ज़्यादा बचेंगे, उतने एनोड और कैथोड ज़्यादा होंगे। ट्रफ सारे आपके कैथोड का काम करेंगे, क्रेस्ट सारे एनोड का काम करेंगे। जितने
ट्रफ्स ज़्यादा होंगे उतने सेल फॉर्मेशन ज़्यादा होंगे, सेल फॉर्मेशन से रिएक्शन ज़्यादा होगा। प्रेजेंस ऑफ गैसेस लाइक CO2 एस गैस H2S CO2 NO2 इस तरह की गैसेस भी करेंगे। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यह भी एक्टिविटी है। एक सिंपल टैप वाटर में आयरन का कोई नेल रख दीजिए, एक में थोड़ा नमक डाल दीजिए, नमक वाले में कोरोजन बड़ा फास्ट होता है क्योंकि सेल फॉर्मेशन के इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है। एंड कोरोजन एक्ट्स एज ऑटो कैटलिस्ट, एक बार कोरोजन स्टार्ट हो गया वो एक के बाद एक लेयर को उड़ाता रहेगा, एक बार करता रहेगा। अगर आपने प्रिवेंशन करनी है तो सारा कोरोड पोर्शन आपको सैंड पेपर से रिमूव करके ही प्रिवेंशन करनी चाहिए। अगर बिना सैंड कोरोड पॉट को आपने हटाए पेंट अप्लाई कर दिया, दैट इज यूजलेस, वेस्टेज ऑफ मनी। कुछ दिनों के बाद फिर वो जो सी है वो लेयर उतर जाएगी और कोरोजन विल टेक इट्स ऑन रेट। तो इसी वजह से हम theory of corrosion, various theories have been proposed, but according to this chapter we will only discuss the cell formation theory or electrochemical theory, क्योंकि इस चैप्टर में हमने सेल भी पढ़े हैं और इस वजह से। Now according to this theory the corrosion of a metal takes place due to the rough surface of metal, presence of oxygen, moisture and gases like CO2 SO2 acidic gases like this one। अभी बताया था जितना रफ सरफेस होगा उतने कैथोड ज़्यादा होंगे और जो क्रस्ट होंगे एनोड होंगे सेल ज़्यादा होंगे। तो कैथोड कौन का काम करेंगे? जो ट्रफ्स हैं जहाँ वाटर वगैरह। तो ये H पॉजिटिव आएगा कहाँ से? जो एटमॉस्फेयर गैसेज हैं CO2 SO2 दे विल फॉर्म एसिड, SO3 H2SO4 बनेगा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। They will provide H positive. At anode तो oxidation हुआ and at cathode the H positive यहाँ से जो सब आएगा वो क्या बना देगा? वाटर। तो here is 4 electron, here is 2 electron. We will multiply this equation with 2 and add this। अगर मैं सेल रिएक्शन को देखूं 2Fe plus O2 plus 4S plus 2Fe2 पॉजिटिव, तो रस्ट तो ग्रीन कलर के होने, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव साल्ट सारे ग्रीन कलर के होते हैं, येलो या ब्राउन तो 3 पॉजिटिव होते हैं। तो रस्ट तो ग्रीन कलर की होनी चाहिए थी, लेकिन रस्ट तो हम देखते हैं येलो या ब्राउन कलर में। क्या कारण हुआ? दिस Fe2 पॉजिटिव इज अनस्टेबल, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। It will undergo oxidation very easily by atmospheric oxygen, and it undergoes oxidation, forms ferric oxide। यहाँ पे अब +3 है, तो ऐसे 8H पॉजिटिव चले। जितने H पॉजिटिव यहाँ पे कंज्यूम हुए यहाँ पे रीजनरेट होते, इसलिए तो कहा है कि प्रिवेंशन से पहले क्या करना चाहिए? सारा कोरोडेड पोर्शन रिमूव करना चाहिए। और जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल करते हैं वो तो इसके बाद अल्कली की कोटिंग करते हैं कि रस्ट पोर्शन उतारने के बाद भी कहीं आसपास H पॉजिटिव रहा तो नहीं, तो अगर NOH सोल्यूशन की कोटिंग कर देंगे तो ये दैट गेट्स न्यूट्रलाइज, फिर आप पेंट अप्लाई करते हैं। This Fe2O3 undergoes hydration, forms Fe2O3 water। इस ढंग से हमने ये थ्योरी ऑफ कोरोजन का। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कुछ तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़े हैं। कैसे? बाय बैरियर प्रोटेक्शन, बाय मेटल और ऑक्सीजन, मॉइस्चर और दूसरे गैसेज के बीच में एक बैरियर खड़ा कर दिया। ऑक्सीजन, वाटर, गैसेस को मेटल तक पहुंचने ही ना दें। एक तो यह तरीका है। मीन्स बाय अप्लाइंग पेंट। पेंट क्या करेगा? एक नॉन पोरस फिल्म
मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। आप किसी भी ऑक्सीजन या मॉइस्चर को एंटर नहीं करने देगा, किसी गैस को एंटर नहीं करने देगा, एंड हेंस मेटल इज सेफ फ्रॉम कोरोजन। ग्रीस के अंदर ऑक्सीजन पानी नहीं सॉल्युबल है, ऑयल के अंदर नहीं सॉल्युबल है, तो वो काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग सुपीरियर मेटल ओवर inferior metal using electrochemical process। आयरन के ऊपर आप कॉपर की कोटिंग कर सकते हैं, कोटिंग इज मच सुपीरियर, और उसका ऑक्सीडेशन रिलेटिवली स्लो है किसके मुकाबले में? आयरन की। कॉपर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर सकते हैं। तो जब तक गोल्ड का सरफेस होगा कोई भी ऑक्सीजन मॉइस्चर नहीं एंटर करेगा, लेकिन जिस केस में कोटिंग ब्रेक होगी तब कोरोजन विल टेक प्लेस मच फास्टर। तो इस ढंग से बाय फिक्सिंग मेटल फॉयल हैविंग लो रिएक्टिविटी, ये भी तरीका इलेक्ट्रोप्लेटिंग बजाय, जैसे ये है इसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक की जैसा शीट चढ़ा दूँ, ऐसे ही मैं अगर किसी मेटल की शीट चढ़ा दूँ कि ये मेटल नीचे वाला सरफेस एक्सपोज ही ना हो, लैबोरेटरीज में है, बीच में मेटल रॉड है, ऊपर एक क्रोम का फॉयल चढ़ा दिया, मेटल एयर को एक्सपोज ही नहीं हो रहा, बिल्कुल एंड अटैच कर दिया उसको। ये भी एक तरीका है जिसकी रिएक्टिविटी कम हो, हाई रिडक्शन पोटेंशियल हो, क्रोम का है, निकल का है, इस तरह की हम प्लेट कर देते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मीन्स इसके अंदर जिसकी हम कोटिंग कर रहे हो अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा, खुद को सैक्रिफाइस करेगा और मेटल को बचाएगा। जैसा कि हमने 10th में पढ़ा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग हैविंग लो मेटल कोटिंग ऑफ मेटल having lower melting point and high reactivity is called as galvanization। कि जिसके ऊपर कोटिंग मेटल उसके मुकाबले उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, उस केस में हम उसे करते हैं। तो हॉट डिपिंग मेथड यूज करते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैंने जिंक को मोल्टन स्टेट में ले लिया और आयरन रॉड डिप कर दिया, ये ठीक है। जब मैं बाहर निकालूंगा तो इसके ऊपर जिंक की सरफेस डिपॉजिट होगी। डिपॉजिट क्यों होगी? क्योंकि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता, आयरन मेल्ट नहीं हुआ। अगर जिंक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता तो आयरन मेल्ट होकर के तो अलग बन जाता। तो जो सी कोटिंग कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए और रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ ए मेटल, जैसे यहाँ पे जिंक हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रिएक्टिविटी, यहाँ पे क्लियर किया है आयरन कैन बी गैल्वेनाइज्ड विद जिंक एंड टिन लेड, व्हिच इज बेटर एंड हाउ? बट जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम है, टिन लेड का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कम है, दोनों हॉट डिपिंग मेथड से इसके ऊपर कोटिंग करते हैं। एक कंडीशन दोनों में सेम है, दोनों में ही मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी आयरन के मुकाबले में कम है। तो इसका रीज़न क्या बनेगा? गैल्वेनाइजेशन बाय जिंक इज बेटर। क्यों? बिकॉज even if in case of any crack or scratch in the coating, zinc will act as a node। क्यों? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, दैट एक्ट्स एज नोड, आयरन एक्ट्स कैथोड, और आयरन अगर कैथोड का काम करेगा तो कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मीन्स प्रिवेंट्स द आयरन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन मीन्स प्रिवेंट्स फ्रॉम कोरोजन। जब तक आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होता तब तक कोरोजन नहीं होगा।
जबकि अगर टिन और लेड की कोटिंग करते हो, इस केस में क्या होगा, आयरन एनोड का काम करेगा और ये लेड और टिन कैथोड का काम करेंगे। अगर आयरन एनोड का काम करेंगे तो आयरन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, हमने बल्कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। In this case, the corrosion takes place at much faster rate than absence of coating. तो यहाँ पे जिंक अपने अगर स्क्रैच हो गया या नहीं हुआ, जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर कोटिंग में क्रैक आ गया तो इन दैट केस द कोरोजन विल टेक्स मच फास्टर रेट देन दैट ऑफ एब्सेंस ऑफ कोटिंग, और इस वजह से हमेशा गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन बाय जिंक इज बेटर देन दैट ऑफ टिन लेड। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर। अब आपके घर में लेड की पाइप है, आयरन की पाइप है, पाइप फिटिंग हो गई है पानी की, और वो पता चला कोरोडेड हो गया। अब उसको सारी पाइप को हटाना सारा मकान को ख़राब करने के बराबर हो जाएगा। उस केस में क्या कर सकते हैं भाई, क्या करें, उस पाइप को एक वायर से कनेक्ट राउंड अप करके एक जमीन के अंदर एक वुडन बॉक्स के अंदर मैग्नीशियम ऐड कर दें। तो जो ही Fe2 पॉजिटिव चेंज होगा, लेकिन ये Fe2 पॉजिटिव को मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको वापस Fe में चेंज करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम विल चेंज इनटू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2, क्योंकि हाईली नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो दिस विल एक्ट एज अ नोड, यानी कि हम कंटिन्यूसली इस पाइप को कैथोड बना के रख रहे हैं, एंड हेंस वी कॉल इट एज कैथोडिक प्रोटेक्शन। एंड लास्ट इज यूजिंग एंटी-रस्ट सॉल्यूशन। एंटी-रस्ट सॉल्यूशन पैसिव विद द मेटल, HNO3 है, अल्कलाइन फॉस्फेट है, अल्कलाइन क्रोमेट है, सिलिकेट्स हैं, ऐसे सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। तो मेटल लाइक आयरन, क्रोमियम, निकल एक्सेट्रा, if they are boiled with concentrated nitric acid at the surface of a metal, a non-porous oxide layer formation takes place, and hence at the surface a thin layer oxide layer is formed which prevents from further corrosion. तो यानी कि हमने क्या किया, मेटल को पैसिवेट कर दिया। पैसिविटी मीन्स passivity, the process by which metal becomes resistant towards corrosion after some treatment with some reagent. तो जब नाइट्रिक एसिड से ट्रीटमेंट दिया तो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का फिल्म बन गया। नाइट्रिक एसिड इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दैट प्रोटेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द आयरन फ्रॉम कोरोजन। बिल्कुल एक पेंट की तरह का काम किया इसने। इसी ढंग से अगर मैं अल्कलाइन सॉल्ट फॉस्फेट से ट्रीटमेंट देता हूँ तो आयरन फॉस्फेट, लेड पाइप है तो लेड फॉस्फेट की एक नॉन पोरस फिल्म डिपॉजिट हो जाएगी, एंड दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेटल फ्रॉम कोरोजन। ऐसे ही यहाँ पे है आयरन क्रोमेट, लेड क्रोमेट, एक नॉन पोरस फिल्म डिपॉजिट हो जाएगी और दैट प्रोसेस। एक मेटल ऐसा है जिसको हमें कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, इवन आयरन से, जिंक से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर भी हमें उसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो कौन सा मेटल है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करके एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की नॉन पोरस लेयर बना लेता है। अदरवाइज एल्युमिनियम इज ग्रे कलर शाइनिंग पैटर्न, थोड़ी डल अपीयरेंस इसीलिए है
क्योंकि उसके सरफेस पे क्या बन चुका है, नॉन पोरस अल्मोनियम ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है विच प्रोटेक्ट्स रेस्ट ऑफ द मैटर। ये घर में बर्तन है, विंडो फ्रेम है, मार्केट में शॉप के अंदर डोर्स वगैरह बने हुए हैं, इसी के हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर अपरेटस बहुत ज़्यादा है जो अल्मोनियम का ही है, उनके केस में कभी पेंट अप्लाई किया ही नहीं। क्यों? एल्यूमिनियम इज नेचुरली पैसिवेटेड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। वो पैसिवेशन कैसे हुआ? बाय फॉर्मिंग नॉन पोरस अल्मोनियम ऑक्साइड लेयर। सिर्फ अल्मोनियम ऑक्साइड नहीं लिखना है, नॉन पोरस अल्मोनियम ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन की वजह से इट प्रोटेक्ट्स रेस्ट ऑफ द मैटर फ्रॉम कोरोजन। तो इस ढंग से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो इसको थॉरली इसके क्वेश्चंस करेंगे और लाइक करेंगे।